Good morning, class. I am Miss Aina from Premchand Memorial Public School, and today we are going to finish the rest of the chapter, that is chapter number 10, Force, Energy, and Simple Machines. So, let's get started. We have read the energy. So, what is energy? Energy is the capability to work, and there are 5 types of energy: mechanical energy, electrical energy, sound energy, heat energy, and light energy. So let's discuss these mechanical energy. So what is mechanical energy? Mechanical energy is the energy possessed by an object due to its motion or its position. So mechanical energy can be of two type. When it is possessed due to the position of an object, then it is called as potential energy, and when it is possessed due to the motion of an object, then it is called the kinetic energy. Let's take an example. A ball is resting or lying on the floor. Simply that means it is in a stable state, it is in a solid, it is in a stature state. Now what happens? You have kicked it. So when the ball lies in stable state, then it possesses potential energy, and when it is in the motion, then it possesses kinetic energy. Now next is electrical energy. We know that electricity is produced or generated in the power stations and transmitted to our homes via power lines or with the help of power lines and wires. So how do we use electrical energy? We use electrical energy for the conduction of various instruments and various appliances, for an example bulbs, radios, television, computer, washing machines, etc. Now what is sound energy? Sound energy is anything that make us hear the things. Now what happens? For an example, barking of dog, wailing of siren, these are the examples of the sound energy. So when an object vibrates, it produces tiny waves of sound, and these tiny waves of sound travel through the air and reaches our ear, and thus we are able to listen to various musics and noise. Now let's deal with this topic in Hindi. टाइप्स ऑफ एनर्जी क्या क्या होते हैं? 5 तरह की एनर्जीज होती हैं: मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी. तो अगर हम बात करें मैकेनिकल एनर्जी की, जैसे कि नेम सजेस्ट करता है कि ये मशीन्स पे या फिर मैकेनिकल वर्क पे बेस होता है, और ये क्या होती हैं? ये 2 तरह की हो सकती हैं: पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी क्यों? पोटेंशियल एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट की तब होती है जब वो स्टेबल या फिर स्टॉप पोजीशन में होता है, या कोई मोशन परफॉर्म नहीं कर रहा होता है. तो जिस कंडीशन, जिस स्थिति में वो है, अगर वो वैसा ही रहता है, उसको उस स्थिति में रखने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी. अब क्या होता है, अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो वो काइनेटिक एनर्जी की हेल्प से मूव कर रहा है. ठीक है. अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, तो हम सबको पता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होती है वो पावर स्टेशन में प्रोड्यूस होती है, फिर उसको वायर्स और पावर लाइन्स के थ्रू हमारे घर तक ट्रांसमिट किया जाता है. ठीक है. इसके पीछे क्या वजह होती है? इसके पीछे ये वजह होती है ताकि जो पावर स्टेशन पे जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी बनी है उसको हमारे घर तक पहुँचाया जा सके, इसलिए हम उसको ट्रांसमिट करते हैं. अब क्या यूज़ होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का? हमें पता है वॉशिंग मशीन, रेडियोस, फैन सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़रूरी है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी बहुत ज़रूरी है. अब साउंड एनर्जी क्या होता है कि साउंड एनर्जी कोई भी ऐसी एनर्जी होती है जिसकी वजह से हम चीज़ें सुन पाते हैं. जैसे कोई भी एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट वाइब्रेशन करता है, अब वाइब्रेशन की वजह से कुछ छोटी छोटी वेव्स बन जाती हैं, वो वेव्स हवा में ट्रैवल करती हैं और हमारे कानों तक पहुंचती हैं, और इस तरह हम कुछ सुन पाते हैं. नाउ द नेक्स्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज़ हीट. So we use heat for various purposes, for example cooking to keep us warm in winter and the rest of the things. But the natural source of heat energy is sun, and the artificial source of heat energy is LPG, coal, kerosene, etc. Now what is light energy? So the light energy makes us see the things. For example, if we are able to see something, then either the object is emitting light or it is reflecting the light, and the object which emits the light is known as the source object. For an example, tube light, sunlight, bulbs, candles, etc. So if we are able to see, it is because of the light energy. Now what are the sources of energy? So the sources of energy have been classified into 2 groups, that is renewable and non-renewable resources, right? So the renewable resources have been broadly described in your book. What are renewable resources or what are the renewable energy? It is the energy that is replenished. मतलब that doesn't mean how much you use it. It is able to replenish its own self. For an example, solar energy, wind energy, geothermal energy, hydroelectric energy. So we are going to talk about these 4 types of renewable resources in detail. So first one is solar energy.
Sun is the source of energy and it has enormous amount of energy, and the energy obtained from the sun is known as the solar energy. Solar energy can be either used for heating purpose directly or for the generation of the electricity. How the electricity is generated? Electricity is being generated with the help of solar panels. So solar panels are glass like structures that are able to capture the energy of the sun and convert it into the electricity, and later this electricity is being utilized in various purposes. Now wind energy. So you can see the power of the wind energy while sailing a boat, right? Because a boat harnesses in the direction of the wind. Now how the wind energy is utilized? Wind energy is utilized by rotating the turbine, by rotating the wind turbine most preferably. So what happens? The wind blows and it rotates the turbine in a high speed, and this rotation rather than going waste is converted to electricity, and that's how we use the electricity generated by the wind. लेट्स डील विद दिस टॉपिक इन हिंदी. हीट एनर्जी क्या होता है? हीट एनर्जी चाहिए होती है क्योंकि कुकिंग के लिए और अपने आप को वार्म रखने के लिए, अपने घर को वार्म रखने के लिए हमको हीट एनर्जी की ज़रूरत होती है. तो जो हीट एनर्जी का नेचुरल सोर्स है वो है सन, और जो आर्टिफिशियल सोर्सेज हैं हीट एनर्जी की वो हैं एलपीजी, कोल, कैरोसिन, वुड्स, बर्निंग फ्यूल्स एक्सेट्रा. लाइट एनर्जी क्या होता है? जिस तरह साउंड एनर्जी हमें सुनने में हेल्प करती है, उस तरह से लाइट एनर्जी की वजह से हम कुछ देख पाते हैं. तो हम क्या देख सकते हैं? हम उस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं या तो जो खुद लाइट एमिट करे या फिर जो किसी और की लाइट को रिफ्लेक्ट करे. तो जो ऑब्जेक्ट्स खुद से लाइट एमिट करते हैं, खुद से लाइट प्रोड्यूस करते हैं, उनको हम बोलते हैं सोर्स ऑब्जेक्ट, राइट? ठीक है. और सोर्सेज ऑफ लाइट एनर्जी, और एग्जांपल है इसके सन, ट्यूबलाइट, बल्ब्स, कैंडल्स एक्सेट्रा. अगर हम सोर्सेज ऑफ एनर्जी की बात करें तो हम ब्रॉडली इनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, रीन्यूएबल एनर्जी और नॉन रीन्यूएबल एनर्जी. रीन्यूएबल एनर्जी वो होती है जो रिप्लेनिश हो जाती है, कि आप कितना भी उसको इस्तेमाल करें लेकिन वो अपने आप को खुद ही रिप्लेनिश कर लेती है. और नॉन रीन्यूएबल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो खुद को रिप्लेनिश नहीं कर सकती और एक टाइम पे जाके एग्जॉस्ट या फिर ख़त्म हो जाती है. तो कौन सी है रीन्यूएबल एनर्जी? सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. सोलर एनर्जी जैसे कि नाम बता रहा है कि सन से प्रोड्यूस होती है ये एनर्जी. तो या तो हम उसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, इतनी हीट होती है सन में, या फिर हम उसको सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं. इलेक्ट्रिसिटी में कैसे कन्वर्ट करते हैं? सोलर पैनल्स की हेल्प से. ठीक है. तो सोलर पैनल्स क्या होते हैं कि बड़े बड़े ग्लास के जैसे कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि हम टेरेस पे या रूफ्स पे लगा देते हैं. फिर वो सोलर एनर्जी को कैप्चर करके इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं, और फिर हम इस इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हैं अपने कामों के लिए. अगर हम विंड एनर्जी की बात करें तो सबसे ज़्यादा और बड़ा इम्पैक्ट विंड एनर्जी का देखा जा सकता है बोट्स में. बोट्स उसी डायरेक्शन में जाती हैं जिस डायरेक्शन में विंड फ्लो करती है. तो क्या होता है कि बड़े बड़े जो विंड टर्बाइंस होते हैं, विंड उसको रोटेट करती है हाई स्पीड में. अब हाई स्पीड रोटेशन की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए कैप्चर कर लिया जाता है, और इस तरह से विंड एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं और उसका यूज़ करते हैं. नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ जियोथर्मल एनर्जी एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी. सो व्हाट इज़ जियोथर्मल एनर्जी? सो द सेंटर ऑफ द अर्थ इज़ वेरी हॉट, वी ऑल नो दैट. So the heat produced in the center can be used for the cooking and heating purposes, and the geothermal energy is being used since ages, and the word geo means the earth and thermal means heat. So these are the Greek words that are being used for describing the geothermal energy. Now what is hydroelectric energy? So we know that the running water is being used in the water mills to grind the grains, but now we are using the running water for the production of electricity. How do we do it? A dam is built across the river, and when the gates of the dams are lifted, water flows and falls on the turbine. As a result, the blades of the turbine rotate in a very high speed, and it leads to the production of energy, right? So this is how the hydroelectric energy is being produced. Now what are non-renewable resources? The resources that are limited in number, and if we do not use them wisely, they are going to extinct. So the examples of these are petroleum, coal, etc. The petroleum takes millions of years for its formation from the remains of decayed sea plants and animals. We cannot make petroleum in a short period of time. So now let's deal with this topic in Hindi. Geothermal energy क्या होता है? अर्थ के सेंटर में ना बहुत ज़्यादा हीट प्रोडक्शन होती है. हम उस हीट का यूज़ करके उस हीट से स्टीम निकाल के हम उसका यूज़ कर सकते हैं बहुत सारी हीटिंग कुकिंग पर्पसेस में. तो इस तरह से हम जियोथर्मल एनर्जी का यूज़ करते हैं. अब जियोथर्मल जो वर्ड आया है वो ग्रीक वर्ड से आया है, जियो और अर्थ. तो जियो का मतलब होता है अर्थ, और थर्मल का मीनिंग होता है
हीट। नाउ अगर हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात करें तो हम जानते हैं कि पहले ज़माने में क्या होता था ना कि वाटर मिल्स और रनिंग वाटर का इस्तेमाल किया जाता था अनाज को पीसने के लिए, लेकिन अब हम क्या करते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी में पानी का यूज़ करते हैं, रनिंग वाटर का यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। कैसे? किसी भी रिवर पे एक डैम बनाया जाता है, उस डैम के जो गेट्स होते हैं, जब हम उन गेट्स को हटा देते हैं, उन गेट्स को ओपन कर देते हैं, तो उस वक्त है ना वाटर बहुत ही हाइट स्पीड में, हाइट से टरबाइन के ऊपर गिरता है। टरबाइन के ऊपर गिरने से जो टरबाइन के ब्लेड्स होते हैं वो हाई स्पीड में रोटेट करते हैं। अब जितना ज़्यादा वो रोटेट करते हैं उतना ज़्यादा एनर्जी की प्रोडक्शन होती है। तो इस तरह से हम जनरेटर की हेल्प से, टरबाइन के ब्लेड से रोटेट होने की वजह से हम जनरेटर की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। ठीक है। अगर अब हम बात करें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की, तो वो रिसोर्सेज होते हैं जो अगर अच्छे से यूज़ नहीं किए गए तो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम वगैरह बहुत ही आसानी से नहीं बनते हैं, उनको मिलियंस ऑफ ईयर्स खरबों साल लग जाते हैं डिकेड प्लांट और एनिमल से बनने में। One form of energy can be changed into the another form of energy, and the best example of it is a cell. A cell contains the energy in the form of the chemical energy, but when it is inserted in a toy car, then it helps in pulling it the toy car. That means the chemical energy stored in the cell is now turned into the mechanical energy, and much more objects are being used day by day on the basis of this energy. For an example, the light bulb. In light bulb, the electric energy or the electricity is being utilized for the production of light and heat energy, right? Now what happens is there are a lot of machines, and a machine is a device that does a physical task or that helps the person to lower their efforts. The most basic machines are those that have minimum or no moving parts. They can change the strength or the direction of the applied force. For example, if you are applying the force in one direction, then with the help of a machine, the direction of the force can be reversed very easily. So there are 6 basic simple machines, that is lever, inclined plane, wheel and axle, pulley, screw and wedge. So now let's talk about the lever. So what is a lever? Lever consists of 3 things or 3 factors, that is fulcrum, load and effort. Fulcrum acts as the hinge or a balancer between the load and the effort. Load is the object on which the work is being done, and effort is the force that is being done for the work to take place. Now just see in your book that the figure 10.18 shows that there is a load, there is a fulcrum, and the person is applying the effort. So it would have taken him much more energy to do the same amount of work with the absence of lever, but in the presence of the lever, the load can be lifted quite easily as compared to the absence of its lever. Now if we talk about the Hindi of this chapter, then this is very simple. So now I'm going to tell the Hindi of this. एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को हम दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में चेंज कर सकते हैं। हम पीछे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी पढ़ के आए ना, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, लाइट, हीट। तो क्या होता है, अगर आप जो सेल लेके आते हो मार्केट से, बैटरी जिनको बोलते हो लोकल लैंग्वेज में, तो अगर आप उसको टॉय कार में लगाते हो तो टॉय कार चढ़ने लगती है। तो बैटरी के अंदर केमिकल एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी सेव्ड होती है, लेकिन जब आप उसको यूटिलाइज़ करते हो तो टॉय कार चलती है तो वो मैकेनिकल एनर्जी परफॉर्म करती है। तो इस तरह से केमिकल से मैकेनिकल में ट्रांजिशन हो गया। अब दूसरा एग्जाम्पल है कि आपने एक बल्ब जलाया, तो बल्ब क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करता है, तो बल्ब इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ करके हीट और लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे हमारे सन का भी एग्जाम्पल है कि सन की एनर्जी से प्लांट फूड और नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। अगर अब हम बात करें मशीन्स की, तो एक मशीन कोई भी ऐसी चीज़ होती है जो कि फ़िज़िकल वर्क को रिड्यूस कर सके, ठीक है। और जो एक अच्छी मशीन होती है और एक बहुत ही सिंपल मशीन होती है, या तो उसमें बहुत ही कम मूविंग पार्ट्स होते हैं या फिर होते ही नहीं हैं। तो एक मशीन का बेसिक काम होता है कि वो एफ़र्ट को रिड्यूस कर दे, जिस चीज़ में ज़्यादा फोर्स लगना चाहिए उसमें कम फोर्स लगे और काम उतना ही। तो 6 बेसिक तरह की मशीन्स होती हैं, उनके नाम है लीवर, इंक्लाइन प्लेन, व्हील एंड एक्सल, पुली, स्क्रू एंड वेज। हमें 6 की 6 पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं लीवर की, जो पहली मशीन है। इसके है ना 3 पार्ट होते हैं, फलक्रम, लोड और एफ़र्ट। फलक्रम क्या करता है, हाइंज या फिर एक बैलेंसर की जैसे काम करता है। तो जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो कि एक पर्सन जो है एफ़र्ट लगा रहा है और उसकी वजह से लोड हट रहा है, लोड उठ रहा है ऊपर की तरफ। तो अगर ये मशीन हमारे पास नहीं होती है, लीवर नहीं होता, तो इसके लिए वो लोड उठाना बहुत ही मुश्किल या फिर इम्पॉसिबल हो जाता। लेकिन इस लीवर की प्रेजेंस की वजह से आसानी से लोड को उठा पा रहा है, और यही काम होता है एक मशीन का, ठीक है। लोड होता है जिसके ऊपर
हमें वर्क करना है, और एफर्ट होता है जिस फोर्स के साथ हमें वर्क करना है, ठीक है। तो अगर अब हम बात करें तो based on the types, based on the position of load, effort and fulcrum, there are three classes of lever, that is first class lever, second class lever and third class lever. Now let's deal with the first class lever. So in the first class lever, the fulcrum is at the center and the examples are hammer, hand pump, pair of scissor. And in the second class lever, the what load is in the center, and as a result the examples of second class lever are wheelbarrow, nutcracker and bottle opener, right. And in the third class lever, the what is left now, look, we have done the load and fulcrum at the center, but now the left part is effort. So the effort is at the center in the third class lever, and the examples are pair of tweezers, a pair of tongs, stapler and fishing rod. तो लेट्स डील विद दिस इन हिंदी. क्या होता है कि लोड, एफर्ट और फलक्रम की पोजीशन के हिसाब से तीन क्लास में लीवर को डिवाइड किया गया है, फर्स्ट क्लास लीवर, सेकंड क्लास लीवर और थर्ड क्लास लीवर. फर्स्ट क्लास लीवर में सेंटर पर फलक्रम होता है और इसके एग्जांपल्स है हैमर, हैंड पंप, पेयर ऑफ सीजर्स. सेकंड क्लास लीवर में सेंटर पर लोड होता है, एग्जाम्पल है बोटल ओपनर, व्हील बैरो एंड नट क्रैकर. अब थर्ड क्लास लीवर में क्या होता है, जो सेंटर पे एफर्ट होता है, तो जिसकी वजह से लोड को हम एकदम एंड पे रखते हैं, और इसके एग्जांपल्स हैं ट्वीज़र्स, tongs, stapler, fishing rod, right. Now let's deal with the inclined plane. So what is an inclined plane? An inclined plane is basically a flat surface that is raised at one end. One end is at the lower part and the other end is slightly raised as compared to the first one. So it takes quite less force to move an object up the inclined plane, and it does as compared to the straight up. For an example, if you are lifting an object straight up and you are lifting an object on the inclined plane, so the effort in the second case would be highly reduced. The examples of inclined planes are slide stamps, staircases, sloping roads, etc. So now what is a screw? Screw is actually an inclined plane wrapped up around a pole in the form of a spiral. Now what is the turning of the screw produces a force that can push the nail, or that can push the screw deep into the wood and can be tightened up against the nut. Now the example of screws are electric bulb, screw jacks, drilling machine, nut bolts. Now a screw is better than a nail. Why? Because it holds the object firmly and cannot be taken out easily. Now let's deal with this topic in Hindi. इंक्लाइन प्लेन एक है ना फ्लैट सरफेस होता है, यानी कि चपटी सतह होती है जो कि एक एंड से उठी हुई होती है. इसका क्या फ़ायदा होता है कि आप इंक्लाइन प्लेन से किसी भी चीज़ को ऊपर लेके जाते हो ना, तो फोर्स कम लगता है. आप अगर उसको सीधे ऊपर लेके जाओगे तो प्रॉब्लम होगी, अगर आप इंक्लाइन प्लेन की हेल्प से ऊपर लेके जाओगे तो आसानी होगी ले जाने में. इसके एग्जाम्पल है रैम्प, स्टेयरकेस, स्लोपिंग रोड्स एट्सेट्रा. अब स्क्रू क्या होता है? स्क्रू होता है इंक्लाइन प्लेन ही होता है, लेकिन आप ये मानो कि उस इंक्लाइन प्लेन को आपने एक रॉड के आसपास लपेट दिया है एक स्पाइरल की फॉर्म में, ठीक है. स्पाइरल मतलब होता है कॉइल की फॉर्म में. तो उसकी वजह से क्या होता है कि इतना फोर्स जनरेट हो जाता है, जब आप उसको स्क्रू को थोड़ा सा टाइट करते हो तो इतना फोर्स जनरेट हो जाता है कि वो डीप वुड में मतलब जहाँ पे आप डाल रहे, सपोज़ आप उसको किसी वुड में फोर्स लगा रहे हो, एक स्क्रू को रख के आप ऊपर से उसके फोर्स लगा रहे हो, तो उसके स्पाइरल नेचर की वजह से इतना फोर्स जनरेट हो जाता है कि वो वुड के अंदर खुद ही डेप्थ में चला जाता है, और उसके बाद फिर हम उसको एक नट से टाइट कर सकते हैं. स्क्रू जैक, ड्रिलिंग मशीन, नट बोल्ट्स एट्सेट्रा, ठीक है. अब हम बात करेंगे वेज की. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द वेज. Wedge is a thick metal or a material that narrows to this thin edge, right. And why does this happen? Because the thin edges creates a force sideways, and that helps into the penetration into the object, and as a result it can cut or tear the object very easily. The examples are fork, knife, etc. Now the next one is pulley. So pulley is basically a wheel, and over it either there is a rope or a chain. So what happens, the pulley simply changes the direction of the force applied, and as a result we can lift the very heavy objects attached to the other end of the pulley, right. Now in villages it is still being used to draw water from the wells and to lift the heavy loads. Now the next part is wheel and axle. We all know what a wheel is, but we do not know what an axle is. So axle is a
rod that is attached to the center of the wheel, and it helps the wheel to rotate or to turn. So what happens, when the wheel moves, it is supported by the axle for its turning, and as a result the system works and we are able to move forward. And in some cases what happens, that the wheel is replaced by a crank, that is a handle that is used to pull or turn the machines, right? Now let's deal with these topics in हिंदी. वेज, सो वेज क्या होता है? वेज एक मटेरियल का पीस होता है जो कि थोड़ा सा हैवी होता है, थोड़ा सा हैवी होता है, और वो एंड पे आके, एक एंड पे आके पतला और नुकीला हो जाता है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसके नुकीले होने की वजह से उसके साइडवेज में फोर्स, उसके आसपास साइड में फोर्स लगता है और वो अच्छे से पेनिट्रेट कर पाता है, चीज़ों को काट पाता है और फाड़ पाता है. तो इसके एग्जांपल हैं एक्स, फॉक और नाइफ़. अगर हम बात करें पुली की, तो पुली क्या होता है? एक व्हील होता है, उस व्हील के ऊपर या तो रोप लगी होती है या फिर चेन लगी होती है. तो क्या होता है, पुली की जो ख़ास बात है वो ये है कि पुली फोर्स की डायरेक्शन को रिवर्स कर देती है. आप एक साइड से खींचते हो और दूसरी तरफ से चीज़ ऊपर आने लगती है, ठीक है. और पुली का जो इस्तेमाल होता है आज भी गाँव में यूज़ की जाती है पानी, कुएँ से पानी निकालने के लिए और हैवी सामान को उठाने के लिए. अब व्हील और एक्सल क्या होता है? व्हील तो पता है पहिया होता है. एक्सल क्या होता है? जिस रोड से पहिया कनेक्टेड होता है ना, उसको एक्सल कहते हैं. एक्सल का काम ये होता है कि जब पहिया मूव करे तो उसको मूवमेंट में सहायता करे, उसकी मूवमेंट में सपोर्ट करे. कहीं कहीं किसी किसी मशीन में ऐसा होता है कि व्हील की जगह क्रैंक होता है. तो क्रैंक क्या होता है? एक एल शेप्ड हैंडल जैसा होता है, जिसकी हेल्प से आप उसको, जब एल शेप्ड हैंडल को आप घुमाते हो या मूव करते हो, तो अंदर के जो पार्ट्स होते हैं मशीन्स के वो मूव करते हैं. तो वो व्हील जैसे ही काम करता है, लेकिन वो शेप एल शेप्ड होती है, इसलिए उसको हम क्रैंक कहते हैं. तो जो अच्छे खासे एग्जांपल्स हैं व्हील और एक्सल के, वो हो गया ओल्ड कार हो गई, मतलब ओल्ड कार यानी कि वो जो बुलक कार्ट्स जो होती हैं वो हो गया, और स्यूइंग मशीन्स हो गई, ठीक है. या फिर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है डोर नॉब्स. जो डोर नॉब्स होते हैं ना, जिनको हम घुमा के खोलते हैं, आजकल जो होटल्स में देखने को मिलते हैं, वो वाले जो डोर नॉब्स होते हैं वो भी व्हील और एक्सल के प्रिंसिपल पे काम करते हैं. नाउ यू विल बी गेटिंग योर असाइनमेंट एट 5 PM. वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर. टेक केयर.